بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں وہ عرض کروں گا۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ اخیرہ اور خروج بے ثانی۔ تو پہلے میں آپ کو آپ کی خدمت میں تکبیر تحریمہ کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، جس میں قرآن مجید کی تفسیر اور مسائل ہیں، اور اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کرمانی ٹی وی 3 میں، اس میں نماز، روزہ، تمام مسائل اس میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو تکبیر تحریمہ سے احکام، مسائل عرض کرتا ہوں۔ حقیقتاً یہ شرط نماز سے ہے، یعنی تکبیر تحریمہ، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال، اس وجہ سے فرائض نماز میں اس کا شمار ہو۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ نماز کی شرائط یعنی طہارت، استقبال، ستر عورت، وقت، تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط جو ہے مفقود جو ہے نماز نہ ہوگی، اور یہ مسئلہ در مختار اور رد المعتار میں موجود ہے۔ اس کے بعد جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام بھی فرض ہے۔ تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ در مختار نے بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ جو ہے کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ رد المختار میں بھی موجود ہے، جس کو فتاوی شامی کہتے ہیں۔ نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی، اور بیٹھ کر کہتا تو یہ جو ہے وہ ہو جاتی۔ یہ مسئلہ رد المختار میں موجود ہے۔ مقتدی نے لفظ اللہ جو ہے امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا، مگر اس تکبیر سے تکبیر جو ہے رکوع، یہ تکبیر رکوع کی نیت کی نماز شروع ہو گئی اور یہ نیت لغو ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اگر اقتدا کی نیت سے نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مگر امام کی نماز میں شرکت نہ ہوئی بلکہ اپنی الگ جو ہے۔ یہ مسئلہ عالمگیری کتاب میں موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو ہو گئی، اور اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہوا تو احتیاط یہ ہے قطع کرے اور پھر سے تحریمہ باندھے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور رد المختار میں بھی موجود ہے۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا یا معذن کے جواب میں کہا اور اس تکبیر سے نماز شروع کر دی، نماز نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ و خاص تعظیم الہی کے الفاظ ہو، مثلا اللہ عز و جل، یا اللہ اعظم، یا اللہ کبیر، یا اللہ الاکبر، یا اللہ الکبیر، یا الرحمن اکبر، یا اللہ الہ، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، یا الحمدللہ، یا لا الہ الا اللہ خیر، یا تبارک اللہ وغیرہ۔ یہ الفاظ تعظیمی کہے تو ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی، مگر یہ تبدیل جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر دعا یا طلب حاجت کے لفظ ہوں، مثال کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں اللہم اغفر لی، اس کا مطلب ہے مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، مجھ پر رحم فرما، اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے جو ہے رزق دے۔
यानी या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझ पर रहमत फरमा, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा। ये अल्फाज जो हैं दुआ के, तो नमाज मुनक़िद न हुई। यूं ही अगर सिर्फ अकबर या अजल्ला कहा, उसके साथ लफ्ज़ अल्लाह ना मिलाया, या जब भी न हुई, या यूं ही अस्तग़फिरुल्लाह, या आऊज़ु बिल्लाह, या इन्ना लिल्लाहि, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या फिर माशाअल्लाह काना, या फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहा तो मुनक़िद न हुई। मुनक़िद न हुई अगर सिर्फ अल्लाह कहा, या अल्लाह या अल्लाहुम्मा कहा जाए। ये फतावा आलमगीरी में भी मसाइल मौजूद है, और फतावा दुर मुख्तार में भी, और फतावा रिदुल मुख्तार में भी ये मसाइल मौजूद है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज की है। लफ्ज़ अल्लाह को अल्लाह या अकबर को या अकबर या अकबार कहा नमाज न होगी, बल्कि अगर इनके मानी फासदा समझ कर कसदन कहे तो फिर काफिर हो जाएगा। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है, और पहली रकात का रकू मिल गया तो तकबीर ऊला की फजीलत पा गया। ये मसला आलमगीरी में मौजूद है। अच्छा मतलब अकबर को अकबार कहना, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। बड़े ढोल को कहते हैं, अकबर को अकबार, तो अकबार बड़े ढोल को कहते हैं, तो अजीज़ान मोहतरम माना गलत हो गया, नमाज फासिद होगी। अगर जानबूझकर कहेगा तो मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया काफिर हो जाएगा। ये मसले जो है मैं आपकी खिदमत में फतावा आलमगीरी दुर मुख्तार और इन जो है उनसे मैं आपकी खिदमत में अखज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको क़ियाम के मुतल्लिक़ मसलात करता हूँ। क़ियाम की जानिब उसकी हद ये है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक न पहुँचे, और पूरा क़ियाम ये है कि सीधा खड़ा हो। ये मसला दुर मुख्तार और रिदुल मुख्तार में मौजूद है। क़ियाम इतनी देर तक है जितनी देर तक क़िरात है, यानी बक़द्रे क़िरात फ़र्ज़, क़ियाम फ़र्ज़, और बक़द्रे वाजिब और बक़द्रे सुन्नत। ये मसला दुर मुख्तार किताब में मौजूद है। ये हुक्म पहली रकात के सिवा और रकातों का है। रकात ऊला में क़ियाम फ़र्ज़ में मिक़दार तकबीर तहरीमा भी शामिल होगी, और क़ियाम मसनून में मिक़दार सना तअव्वुल तस्मिया भी। मेरे दोस्तों, क़ियाम और क़िरात का वाजिब व सुन्नत होना ये बाई माना है कि उसके तर्क पर तर्क वाजिब व सुन्नत का हुक्म दिया जाएगा, वरना बजा लाने में जितनी देर तर्क क़ियाम किया और जो कुछ क़िरात के सब फ़र्ज ही है, फ़र्ज का सवाब मिलेगा। ये मसला दुर मुख्तार और फतावा शामी यानी रिदुल मुख्तार में मौजूद है। फ़र्ज, वितर, ईदैन, सुन्नत, फजर में क़ियाम फ़र्ज है कि बलाउज़र सही बैठकर ये नमाज़ें पढ़ेगा ना होंगी। दुर मुख्तार रिदुल मुख्तार में ये मसला मौजूद है, यानी सही तंदुरुस्त होकर भी ऐसा काम करे। एक पाँव पर खड़ा होना यानी दूसरे को ज़मीन से उठा लेना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी होता है हराम के नज़दीक, हलाल के नज़दीक होता है मकरूह तंज़ीह। तो ये मकरूह तहरीमी होगा, हराम के नज़दीक होगा। और अगर उज़र की वजह से ऐसा किया तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। ये मसला आलमगीरी ने लिखा है। अगर क़ियाम पर कादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता तो उसे बेहतर यह है कि बैठकर इशारे से पढ़े, और खड़े होकर भी पढ़ सकता है। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। जो शख्स सजदा तो कर सकता है मगर सजदा करने से ज़ख्म बहता है, जब भी उसे बैठकर इशारे से जो है नमाज पढ़ना जो है पढ़ लेना चाहिए। पढ़ना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब है काम कर लो सवाब है, ना करो गुनाह नहीं है। और खड़े होकर इशारे से पढ़ना भी जायज़ है। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। जिस शख्स को खड़े होने से कतरा आता है या ज़ख्म बहता है और बैठने से नहीं, तो उसे फ़र्ज है कि बैठकर पढ़े। अगर और अगर जो है तौर पर उसकी रोक जो है न हो सके, न कर सके, यूँ ही खड़े होने से चौथाई सत्तर खुल जाएगा या क़िरात बिल्कुल जो है न कर सकेगा तो बैठकर पढ़े। और अगर खड़े होकर भी कुछ पढ़ सकता है तो फ़र्ज है कि जितनी देर पर कादिर हो खड़े होकर पढ़े, बाकी बैठकर पढ़े। ये मसला दुर मुख्तार और रिदुल मुख्तार में मौजूद है। अगर इतना कमज़ोर है कि सजदा में जमात के लिए जाने के बाद खड़ा होकर ना पढ़ सकेगा, और घर में पढ़े तो खड़ा होकर पढ़ सकता है, तो घर में पढ़े, जमात मुयस्सर हो तो जमात से, वरना तना। ये मसला दुर मुख्तार और फतावा शामी में मौजूद है। खड़े होने से महज कुछ तकलीफ होना उज़र नहीं, बल्कि क़ियाम उस वक़्त साकित होगा, खड़ा ना हो सके या सजदा ना कर सके, या खड़ा होने या सजदा करने में ज़ख्म बहता है, या खड़े होने में कतरा आता है, या चौथाई सतर खुलता है, या क़िरात से मजबूर महज हो जाता है। यूँ ही खड़ा तो हो सकता है मगर उससे मर्ज़ में ज़्यादती होती है, या देर में अच्छा होगा या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होगी तो बैठ कर पढ़े। अगर
जो है आसा या खादिम पर या दीवार पर टेक लगा कर खड़ा हो सकता है तो फर्ज है कि खड़ा होकर पढ़े। अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है, अगर इतना ही खड़ा हो कि अल्लाह अकबर कह ले तो फर्ज है खड़ा होकर इतना कह ले फिर बैठ जाए। मेरे दोस्तों, आजकल अमूमन ये बात देखी जाती है कि जहाँ ज़रा सा बुखार आया या खफीफ सी तकलीफ हुई तो बैठकर नमाज शुरू कर दी। हालांकि वही लोग उसी हालत में 10-10, 15-15 मिनट बल्कि उससे भी ज़्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें गप्पे कर लेते हैं, गप्पे हाँकते हैं। तो अजल मतलब इनको चाहिए कि इन मसाइल से मुतनब्बा हो, खबरदार हो, और जितनी नमाजें बावजूद कुदरत की यहाँ बैठ कर पड़ी है उनका यादा फर्ज है। यूं ही अगर वैसे ही खड़ा ना हो सकता था, बगैर आसा या दीवार या आदमी के सहारे खड़ा होना मुमकिन था तो वो नमाजें भी न हुई और उनका फेरना फर्ज। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कश्ती पर सवार है और वो चल रही है तो बैठकर उस पर नमाज पढ़ सकता है। यानी जब चक्कर आने का गुमान गालिब हो और किनारे पर उतर ना सकता हो तो फिर है। इंशाअल्लाह मतलब फिर मैं आपको किरात के मुतालिक अर्ज करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।